Today I am very happy to meet with you after a long period due to coronavirus. Today I am going to teach you the subject of English grammar. Dear children, first of all, introduction. There are 4 points I shall teach you in the introduction. First of all, the definition of grammar. Second, letter of alphabet. Third, vowel and consonants. And fourth, word and spelling. Fifth, pronunciation of THED. Now, students, I explain the definition of grammar. Dear children, as you know, grammar is a system of rules that defines the grammatical rules of a language. Children, as you know, grammar is a home of English rules, just as our constitution. हमारा संविधान प्रशासनिक नियमों का एनालिसिस करता है और हमारा ग्रामर अंग्रेजी के जो नियम हैं उनका वह डिफाइन करता है, वह बतलाता है. दैट इज कॉल्ड ग्रामर. अगेन, ग्रामर इज ए सिस्टम of rules that define the grammatical language. Do you understand? Next point is letter of alphabet. Dear children, as you know, there are 26 letters of English alphabet, and as we know, there are 2 kinds of letter. One is a small, big, and productive. बच्चे, आप लोग अभी तक पढ़े हैं कि लेटर जो होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं, वह 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं स्मॉल और दूसरे को बोलते हैं बिग. नाउ आई टीच यू अबाउट द थर्ड लेटर, दैट इज कॉल्ड कर्सिव लेटर, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लटपटुआ अक्षर बोलते हैं. अर्थात स्टाइल देकर के जो लेटर हम लोग लिखते हैं, दैट इज कर्सिव राइटिंग. व्हेन एनी स्टूडेंट राइट ए सेंटेंस, देयर सेंटेंस शोज दैट दिस स्टूडेंट इज ए इंग्लिश मीडियम और ए हिंदी मीडियम. इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल इंग्लिश स्टूडेंट्स इन ए कर्सिव राइटिंग. So there are 3 kinds of letters: small letters, big letters, and cursive letters. Dear children, I know about a letter that is called productive letter. You can ask me, sir, what is productive letter? Productive letter is that letter which helps in production of letters.
in 26 letters. A and I. A and I are productive letters. Means किसी भी अक्षरों का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें ए और आई का हेल्प लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी भी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। इसलिए इस लेटर का नाम रखा गया है प्रोडक्टिव लेटर्स। इट मीन्स ए एंड आई आर द प्रोडक्टिव लेटर्स, except I, all letters are pronunciated with the help of A, I. As for example, book. B for pronunciation. D I help B, B, E. E means I. So I is help for pronouncing the letter of B. Second chapter is vowel and consonants. Dear children, you know there are two kinds of letter on the basis of pronunciation. उच्चारण के दृष्टिकोण से हम लोग सभी 26 अक्षरों को दो वर्गों में विभाजित किए हैं। एक का नाम है वॉवेल्स और दूसरे का नाम है कॉन्सोनेंट्स। ए, ई, आई, ओ एंड यू A, E, I, O, U are vowels and the rest 21 letters are called consonants. Dear children, some letters W or Y, sometimes vowel and sometimes consonant. Now, what is the definition of vowels? अब हम तुम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि vowels किसको कहते हैं। What are the definition of vowels? Vowels are those letters which can be spoken without the help of any letter. vowels हम उसको कहते हैं जिसको उच्चारण करने के लिए बिना किसी लेटर्स की मदद से हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, उसी का नाम vowel है। उदाहरण स्वरूप हम ए बोलते हैं बच्चे। दूसरी बात इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम vowels का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुला हुआ रहता है। जैसे ए बोलते हैं, ई बोलते हैं, आई बोलते हैं, ओ बोलते हैं, यू बोलते हैं। तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। When we pronunciate the words of vowel, with mouth will be open. तुम्हारा मुंह जो होगा वह खुल जाएगा। That is called vowels. दूसरे शब्दों में हम vowels के बारे में बोल सकते हैं कि vowels are those words, vowels are those letters which can spoken without any help of the letters. These are called vowels. As for example, A, E, I, O, U are vowels. Now I teach you about consonants. What are consonants? Consonants are those letters which are spoken partly or completely with the help of A, E,
आई ओ यू। अर्थात कॉन्सोनेंट्स हम उन शब्दों को कहते हैं जिसका उच्चारण वॉवेल्स की मदद से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बच्चे, चिल्ड्रंस, यू कैन प्रैक्टिस दीज वर्ड्स। कॉन्सोनेंट्स बोलने के समय में तुम देखोगे कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बुक बोलते हैं, बुक, बी बोलते हैं, बी, बी देखो वो बंद, उठ मोट क्या होता है, सट जाता है, बी। तो कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं हम उन शब्दों को जिन शब्दों को बोलने के लिए वॉवेल्स की सहारा मदद लेना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स दोज वर्ड्स आर स्पोकन, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स वर्ड। बच्चे, अब हम तीसरा शब्द पढ़ाएंगे आप लोगों को, वर्ड्स एंड स्पेलिंग। As you know, words are a group of letters, and words means meaningful words, that is called words. Nonsense words are not words because their meaning are nothing. So in the writing or in the reading, you have to understand, you have to write letters on the serial ways which is necessary. जो तुम्हें जरूरत है उसके अनुकूल अगर तुम शब्दों को लिखते हो तो उसका तुम स्पेलिंग भी सही ढंग से उच्चारण कर सकते हो और उसका अर्थ भी सही ढंग से होगा। उदाहरण स्वरूप हम बोलते हैं CAT, कैट। अब देखो, CAT, कैट यह एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया शब्द है जिसको पढ़ने के बाद इसका स्पेलिंग भी होता है कैट। कैट मीन्स क्या हो गया, बिल्ली। और दूसरा शब्द है जैसे नेट, NET, नेट, इसका बनेगा फिर NET, नेट। जब इस नेट शब्द को हम सही ढंग से लिखते हैं तो इसको हम नेट पढ़ते हैं, और यदि इस शब्द को हम सही ढंग से नहीं लिखते हैं तो यह हो जाएगा N लिखते हैं, T लिखते हैं और E लिखते हैं तो यह मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा। मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। अब बच्चे देखें तो कहां ये है, जब कभी भी हम किसी भी शब्दों को लिखना चाहते हैं, जब कभी भी हम किसी भी शब्दों को पढ़ना चाहते हैं तो अगर हम सही ढंग से लिखते हैं, प्रॉपर वे में लिखते हैं, दैट वर्ड्स विल बी मीनिंगफुल। वह शब्द क्या होगा, अर्थपूर्ण वाक्य होगा। और अगर हम उसको सही ढंग से नहीं लिखते हैं तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा और उस वर्ड्स का कोई अर्थ नहीं होगा। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी, डियर चिल्ड्रन, एज यू नो, प्यारे बच्चे, तुम पढ़ते हो, तुम जानते हो, आर्टिकल्स का नाम तुम लोग सुना होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफिनिट एंड इंडिफिनिट। ए और एन का तो कुछ अशाब्दिक अर्थ होता है, ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, लेकिन THED का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। निश्चितता बताने के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अभी हम I am going to teach you about the pronunciation of THE. There are two pronunciation of the. One is the and other is the. हम
दो तरह से THE का कहीं द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, कहीं दी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे अभी हम पढ़ाने के लिए जाएंगे कि where shall I use the pronunciation of THE the, और where shall I use the words of THE the। अभी हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि कहां हम THE का प्रोनाउंसिएशन द करेंगे और कहां हम THE का प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। Dear children, I have taught you about the letters, vowel and consonants. The pronunciation of the depends on the vowel and consonants words. That word which is starting vowels are called first letters of that words is vowel. बच्चे हम यहाँ यह आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि वह शब्द जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, जैसे बुआ, कैट, रैट, मैट। Here there are some words: boa, cat, rat, mat. In all words, first letters are B, C, R, M, consonants. So I want to say that words which have first letter इन कॉन्सोनेंट, वह शब्द जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है। बुआ का पहला अक्षर बी कॉन्सोनेंट है, कैट का पहला अक्षर सी कॉन्सोनेंट है, रैट का पहला अक्षर आर कॉन्सोनेंट है, मैट का पहला अक्षर एम कॉन्सोनेंट है। सो दैट वर्ड which first letters are consonant, THE, we read THE the. Here I shall द बुआ पढ़ेंगे, द कैट पढ़ेंगे, द रैट पढ़ेंगे, द मैट पढ़ेंगे। अर्थात जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले अगर THE का प्रयोग किया गया है तो उस THE का प्रोनाउंसिएशन हम द करेंगे, अर्थात यह शब्द करेंगे द बुआ, द कैट, द रैट, द मैट, etc. Now second words, which words starts with vowels, as for example ant, A-N-T, ant, ice cream. Here ant, first words of ant, A is a vowel. Ox, A. Ice cream, first word of ice cream is I, is a vowel. Ox, first word of the ox is O, is a vowel. A, first word of the A is E, is a vowel. So I want to say that words which starting words have vowels
THE are read the, अर्थात वह शब्द जिसका पहला अक्षर वॉवेल्स होगा। ए एंड का पहला अक्षर ए वॉवेल्स है, आइसक्रीम का पहला अक्षर आई वॉवेल्स है, ऑक्स का पहला अक्षर ओ वॉवेल्स है, एक का पहला अक्षर ई वॉवेल्स है। उससे पहले अगर द का प्रयोग किया जाता है THE, तो उस को हम दी पढ़ेंगे, अर्थात दी एंड, दी आइसक्रीम, दी ऑक्स, दी ए। डू यू अंडरस्टैंड? समटाइम्स, कभी कभी कुछ वैसे शब्द होते हैं। तीसरा नियम बता रहे हैं बच्चे हम, आई एम गोइंग टू टीच द थर्ड लॉ वेयर आई शैल यूज, वेयर आई शैल प्रोनाउंसिएशन, वेयर आई शैल रीड दी, THE दी। कभी कभी वैसा सेंटेंस होता है, एज फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी वैसा सेंटेंस होता है जहां पर द के पहले बुआ है। दिस इज द बुआ हु इज माय फ्रेंड। अब यहां पर देखिए हम क्या लिखे हैं, दिस इज द बुआ हु इज माय फ्रेंड। बच्चे हम पढ़ाए भी आप लोगों को कि अगर कॉन्सोनेंट शब्द होता है पहला तो द बोलते हैं, हम बोलना चाहिए हमको बुआ से पहले बी जो है वह कॉन्सोनेंट है, तो हमको बोलना चाहिए यहां पर क्या, द बुआ। बट इट इज रॉन्ग, लेकिन यह गलत हो गया। सही क्या होगा, अगर हमें किसी भी नॉन के ऊपर प्रेशर डालना है, एम्फेसाइज करना है, जोर डालना है, उस स्थिति में अगर उस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट भी है तो हम THE को हम दी ही पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इस शब्द को हम पढ़ेंगे ऐसे, दिस इज दी बुआ, नॉट द बुआ। क्या पढ़ेंगे हम, दिस इज दी बुआ हु इज माय फ्रेंड। यहां पर इन दिस सेंटेंस वी प्रेशर, we praise, we emphatic to the boa. So before use THE, I shall read, I shall pronunciate THE the, but not the। इन वाक्यों में बुआ के पहले प्रेशर दिया गया है, बुआ के ऊपर जोर दिया गया है, इसलिए हम इस बुआ के पहले जो THE दी का इस्तेमाल किया गया है, इसे हम द नहीं पढ़ करके दी पढ़ेंगे। बंद करो।